ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل خوش نہیں، اس لیے یہ معاہدہ برا معاہدہ ہے۔ اسرائیل کی رائے کا احترام ہے لیکن ہمارے مفادات ان سے الگ ہیں۔ پوڈ کاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے جے ڈی وینس کا کہنا تھا اسرائیل امریکہ کا ایسا ہی اتحادی ہے جیسے فرانس برطانیہ ہے۔ ہم ہر وقت صرف اپنے اتحادیوں کے مفادات کا خیال نہیں رکھ سکتے۔ اسرائیل امریکی سیاست میں اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ چارلی کرک کا بھی امریکہ میں اسرائیلی اثر و رسوخ پر تشویش تھی۔ امریکی رہنماؤں کو بہت محتاط ہونا ہوگا، اپنے ملک کا مفاد دیکھنا ہوگا۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا پاکستانی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور پاکستان کے وزیر اعظم عظیم لوگ ہیں۔ پاکستانی رہنماؤں نے ایران سے ڈیل میں بہت مدد دی۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف کی ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر عظیم آدمی ہیں اور پاکستان کے وزیر اعظم بھی عظیم ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اپنے وزیر اعظم کا مکمل احترام کرتے ہیں، جو بہت خوبصورت بات ہے۔ ٹرمپ نے کہا پاکستانی رہنماؤں نے ایران سے ڈیل میں بہت مدد دی۔ پاکستانی قیادت ایرانی قیادت اور ایرانی قوم کو جانتی ہے۔ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا چینی صدر ستمبر میں امریکہ کا دورہ کریں گے۔ ایران کے معاملے میں چین نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ امریکی انٹیلیجنس اداروں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کو خبردار کیا کہ اسرائیل ایران امن معاہدے کو سبوتاژ کر سکتا ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے امریکی انٹیلیجنس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ایسے اقدامات کر سکتے ہیں جو ایران کے ساتھ دیرپا امن معاہدے کی امریکی کوشش کو نقصان پہنچائیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو لبنان میں جنگ جاری رکھنے کے لیے داخلی سیاسی دباؤ کا سامنا ہے، جس کے باعث وہ امن عمل کو متاثر کرنے کے فیصلے کر سکتے ہیں، جن میں رواں ہفتے گردش ہونے والی ایک رپورٹ بھی شامل ہے۔ اسرائیل حزب اللہ کے خلاف لبنان میں فوجی کارروائیاں جاری رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے، جو ایران کے ساتھ ہونے والے معاہدے کی ایک پابندی نقطے یعنی تمام محاذوں پر جنگ بندی کے خلاف ہوگا۔ پاکستان نے سفارتی میدان میں بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا۔ مودی سرکار کی ناکامی پر سوال اٹھنے لگے۔ مارکہ حق میں بھارت کے خلاف دفاعی کامیابی، ایران امریکہ کشیدگی میں نتیجہ خیز ثالثی نے دنیا بھر میں پاکستان کو ایک نئی پہچان دلائی۔ امریکی میڈیا فاکس نیوز کے مطابق بھارت واشنگٹن سے تعلقات بحال کرنے کی کوشش میں مصروف ہے، جبکہ پاکستان پہلے ہی سفارتی لوہا منوا چکا۔ G7 سمٹ میں امریکی صدر بھارتی وزیر اعظم کی ملاقات روایتی گرم جوشی کے بجائے صرف مسافے تک محدود رہی۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات بظاہر دوستانہ تھی مگر تناظر میں کشیدگی نمایاں تھی۔ بھارت کئی سال پاکستان کو دنیا میں تنہا کرنے کی کوشش کرتا رہا، جبکہ پاکستان خطہ اور عالمی سطح پر اہم ترین ملک بن کر ابھرا۔ بھارتی تجزیہ کاروں کے مطابق دنیا اب امن کے لیے بھارت کے بجائے پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، جو مودی کی ناکامی ہے۔ اب اس طالبان رجیم کے حالیہ آمرانہ اقدامات کو افغانستان کے سرکاری قوانین کا درجہ دینا ناقابل قبول قرار۔ طاقت کے زور پر افغانستان پر قابض طالبان رجیم کو نہ تو عالمی برادری اور نہ ہی افغان عوام تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اقوام متحدہ میں مستقل افغان مندوب نصیر احمد اندیشہ نے طالبان رجیم کے حالیہ اقدامات پر سوالات اٹھا دیے۔ افغانستان کے سفیر اور نمائندہ برائے اقوام متحدہ نصیر احمد نے کہا طالبان رجیم کے احکامات کو افغانستان کے سرکاری قوانین یا عوام کی مرضی اور رائے کی نمائندگی کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ پاکستان افغانستان کے عوام طالبان رجیم کے فیصلوں کی حمایت نہیں کرتے اور یہ پالیسیاں عوامی خواہشات کو بھی ظاہر نہیں کرتی۔ کہا افغان عوام نہ صرف طالبان کی سخت پالیسیوں سے تنگ ہے بلکہ کچھ علاقوں میں رجیم کے خلاف کھل کر احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اقوام متحدہ میں افغان مندوب کا یہ بیان اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ طالبان کی بین الاقوامی سطح پر قانونی حیثیت تسلیم کروانے کی کوششیں پوری طرح ناکام ہو رہی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور سندھ کے صوبائی وزیر علی حسن زرداری کے درمیان اسلام آباد میں اہم ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے درمیان ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال، بین الصوبائی ہم آہنگی اور عوامی مسائل کے حل سے متعلق مختلف امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے موجودہ ملکی حالات کے تناظر میں سیاسی استحکام، قومی یکجہتی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر باہمی دلچسپی کے دیگر اہم معاملات پر بھی غور کیا گیا اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ ملاقات خوشگوار ماحول میں منعقد ہوئی جس میں ملکی ترقی، امن و امان اور عوامی خدمت کے حوالے سے مختلف تجاویز اور امور پر بھی گفتگو کی گئی۔ محکمہ تعلیم سندھ نے ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ اسٹاف کے لیے چہرے کی شناخت سے رجسٹریشن لازمی قرار دی۔ محکمہ تعلیم کے مطابق جون جولائی کے دوران ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ اسٹاف کے چہرے کی شناخت کے ذریعے رجسٹریشن کی جائے گی، جبکہ اگست سے تمام ملازمین کے لیے
रोजाना इन आउट हाजिरी लगाना लाजमी होगी। महकमे तालीम सिंध ने खबरदार किया कि मुकर्ररा मुद्दत में रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले मुलाजमिन की तनख्वाहें रोक दी जाएंगी। हाजिरी का नया सिस्टम बराह रास्त एजी सिंध ट्रेजरी से मुंसलिक होगा। एलामिया के मुताबिक एक माह में 2 से ज़ायद छुट्टियां इजाफी शुमार की जाएंगी, जबकि ताखीर से आने या गैर हाजिरी की सूरत में तनख्वाह से खुद कटौती भी की जाएगी। महकमे तालीम सिंध ने हिदायत की है कि मुलाजमीन तनख्वाह की कटौती से बचने के लिए वक्त पर रजिस्ट्रेशन और हाजिरी लगाना यकीनी बनाएं। और आपको बताएं, पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई है। हुकूमत की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 74 रुपए और डीजल की कीमत में 67 रुपए फी लीटर की बड़ी कमी की गई है। इस फैसले के बाद पेट्रोल की नई कीमत 373 रुपए से कम होकर 299 रुपए और डीजल की कीमत 378 रुपए से कम होकर 311 रुपए फी लीटर पर आ गई है। पेट्रोल और डीजल के बाद मिट्टी के की भी कीमत में भी फी लीटर बड़ी कमी कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मिट्टी के तेल की फी लीटर कमी 48 रुपए 29 पैसे हुई है। मिट्टी के तेल की नई कीमत 233 रुपए 90 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई है। कीमतों में इस बड़ी कमी की असल वजह आलमी मंडी में तेल का सस्ता होना और मशरिक और वस्ता की जंग का खात्मा है। हुकूमत ने पेट्रोल पर डेवलपमेंट लेवी में कमी, डीजल पर बढ़ा दी। ज़राए वज़ारत पेट्रोलियम के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी में 40 रुपए 49 पैसे फी लीटर कमी के बाद पेट्रोल लेवी 106 रुपए 74 पैसे से कम करके 66 रुपए 25 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी, जबकि डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में 19 रुपए 71 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया, जिसके बाद डीजल पर लेवी 53 रुपए 26 पैसे फी लीटर से बढ़ाकर 72 रुपए 97 फी लीटर मुकर्रर कर दी। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल डीजल पर लेवी की औसत अब 80 रुपए फी लीटर से कम हो गई। दोनों मसनूआत पर मजमूई लेवी 139 रुपए 22 पैसे फी लीटर बनती है। रवां साल का हदफ पूरा होने के बायस लेवी में कमी की गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कमी के बाद हुकूमत ने मुल्क में लगी कई सख्त पाबंदियां और किफायत चारी के इक़दाम भी वापस ले लिए हैं। हुकूमत का कहना है मुश्किल हालात में अवाम ने जिस सब्र का मुजाहिरा किया, ये कमी इसी का फल है और आलमी मार्केट का ये फायदा मंद और अवाम तक पहुंचाया जा रहा है। तेल सस्ता होते ही मुल्क में कारोबार और सरकारी दफातर के हवाले से भी बड़े फैसले किए गए हैं। हुकूमत ने पेट्रोल बचाने के लिए जो जुम्मे की इजाफी छुट्टी शुरू की थी, उसे अब पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। उसके साथ ही सरकारी अफसरान के लिए पेट्रोल की जो कटौतियां की गई थी वो भी बहाल कर दी गई हैं और 60% सरकारी गाड़ियों को बंद करने का फैसला भी वापस कर दिया गया। बिजली और तवानाई बचाने के लिए ये हुक्म बरकरार रखा गया है ताकि तमाम दुकानें और कारोबारी मराकज़ रात 9 बजे ही बंद होंगे, जबकि शादी हॉलों और दीगर तकरीबात के हॉल को 10 बजे बंद कर दिया जाएगा और पुरानी हिदायत पर अमल करना होगा। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। इस्लामाबाद इंतजामिया मुतहरिक असिस्टेंट कमिश्नर्स का वफाकी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल पंप्स का दौरा, नई कीमतों के निफाज का जायजा। रात 12 बजे से तमाम पेट्रोल पंप्स पर नई कीमतों के तलाक को यकीनी बनाया जाएगा। इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में निगरानी का अमल जारी। खेलों की खबरों में बताएं, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के ग्रुप सी के मैच में मराकश ने स्कॉटलैंड को 0-1 से हराकर 3 कीमती पॉइंट्स हासिल कर लिए। नाकामी के बावजूद स्कॉटलैंड का इवेंट से सफर खत्म नहीं हुआ। ह्यूस्टन में खेले गए इस मैच में मराकश का स्कॉटलैंड के खिलाफ आगाज इंतहाई जारहाना और नतीजा खेज रहा। खेल के सिर्फ 71वें सेकंड में मराकश के साबरी ने गेंद हरीफ टीम के जाल में पहुंचाकर टीम को 1-0 की बढ़तरी दिलाई। इस हाफ में मराकश के खिलाड़ी तो मजीद बढ़तरी हासिल ना कर सके, साथ ही स्कॉटलैंड की टीम इस खसारे को पूरा करने में मसरूफ रही, लेकिन वक्ते तक मुकाबला 1-0 से मराकश के हक में रहा। दूसरे हाफ में स्कॉटलैंड की टीम मराकश के मुकाबले में ज्यादा बेहतर खेली, उनकी पासिंग हमले से बेहतर रही, मगर नतीजा गोल की सूरत में नहीं निकल सका। खेल का अख्तिताम 1-0 से मराकश की जीत पर हुआ। इस कामयाबी के नतीजे में मराकश ने 3 कीमती पॉइंट्स हासिल कर लिए। कराची में गहरे बादलों के डेरे, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और महकमा मौसमियात ने तेज धूल उड़ाने वाली आंधी का अलर्ट जारी कर दिया। हब्स की शिद्दत और महसूस होने वाला दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और मगरबी हवाओं का यह सिस्टम शहर कायद को क्या नई करवट देने वाला है। आज इसकी बड़ी मौसमी तब्दीली पर देखते हैं सहर खान की ये खुसूसी रिपोर्ट।
कराची का मौसम एक बार फिर बड़ी करवट ले रहा है। शहर कायद में आज मुतला गहरे बादलों की लपेट में है, लेकिन हवा में नमी का तनासुब 75% तक बुलंद होने के बायस शहरियों को शदीद हब्स का सामना है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर का असल दर्जे हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, लेकिन हवा बंद होने और शदीद घुटन की वजह से ये तपिश इंसानी जिस्म को 42 डिग्री तक महसूस हो रही है, जिसने शहरियों को बेहाल कर रखा है। शहरियों के लिए सबसे अहम अपडेट ये है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और महकमा मौसमियात ने कराची में तेज धूल उड़ाने वाली आंधी का अलर्ट जारी कर दिया है। मगरिबी हवाओं के सिस्टम के बायस शहर में 15 से 16 मील फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि इस आंधी के साथ ही आज रात शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान भी मौजूद है। ये प्री मानसून लहर मानसून के बाकायदा सिस्टम से पहले शहर के दर्जा हरारत को गिराने में मददगार साबित होगी। शदीद हब्स और आंधी के इस अलर्ट के पेश नजर शहरियों को बिला जरूरत बाहर निकलने से गुरेज और पानी का इस्तेमाल ज्यादा रखने का मशवरा दिया गया है। कैमरा टीम के साथ सहर खान, NTN न्यूज, कराची। कराची में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल तीसरे रोज में दाखिल हो गई। मुसाफिर घंटों इंतजार करने पर मजबूर। हड़ताल खत्म न होने से मामूलाती जिंदगी मुतासिर। मजीद जानते हैं सहर खान से। जी सहर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची की मतलूब तरीन शाहराह फैसल पर मौजूद हूँ, जबकि आज तीसरा रोज है जो ट्रांसपोर्टर की जानिब से हड़ताल जो है वो जारी है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो काफी परेशान नजर आते हैं और सड़कों पर जो है वो घंटे खड़ा होना पड़ रहा है। और जो बसेस हैं, जो क्या कहते हैं बस रेड बस है या मेट्रो बस है, वो तकरीबन आधे घंटे या 15 मिनट के वक्त से आती है। शहरी इस वजह से काफी परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। इसी हवाले से हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, मस्जिद उनसे जानते हैं। परेशानी तो बहुत है इस हवाले से, क्योंकि वजह यह है कि ऑल्टरनेट अगर उसका देखा जाता है, जैसे बाइक राइडर्स हायर किए जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा पैसे डिमांड करते हैं। पेट्रोल प्राइसेस कम हुए हैं, लेकिन अभी इतने कम नहीं हुए, क्योंकि पब्लिक को अभी भी सहूलत मैसर नहीं है। और जहाँ तक रही ट्रेवल करने की बात, तो इस स्ट्राइक में आवाम के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो रही हैं। और ये हकीकत बात है कि जो रेड बसेस हैं वो बहुत देर से आ रही हैं और फुली लोडेड आ रही हैं। यहाँ से यही मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द ये स्ट्राइक खत्म की जाए, इनके मुतालबात पूरे किए जाए। और मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहूंगा कि पब्लिक को जो चलान में प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको आम आवाम को सॉल्व करना चाहिए। जी, शहरी का कहना है कि जो अल्टरनेट है वो भी इतने घंटों के बाद आती है, जिसकी वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि ई चालान हुआ या फिर पेट्रोल की कमी भी हुई, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है आम आवाम को। जबकि शहरी का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि ट्रांसपोर्टर के साथ जो भी मुज़ाकरात है वो जल्द से जल्द मसले का हल निकालना चाहिए, ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। जी खबर देंगे। 15 साल से मफरूर रेड बुक का इंतहाई मतलूब मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। हज उम्रा फ्रॉड, इंसानी स्मगलिंग और मालियाती जराइम के बड़े नेटवर्क का इंकशाफ भी सामने आया है। इसी बड़ी कार्रवाई से मुतालिक मजीद जानते हैं अपने चीफ रिपोर्टर जीशान मलिक से। जी जीशान, बताइएगा। बिल्कुल, FIA कराची जोन की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई है। 15 साल से मफरूर रेड बुक का इंतहाई मतलूब मुल्जिम जो है उसको गिरफ्तार किया गया है। मुल्जिम हज उम्रा फ्रॉड, इंसानी स्मगलिंग और मालियाती जराइम के बड़े नेटवर्क में मुलविस था। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सलकर की जानिब से अहम कार्रवाई के दौरान रेड बुक में शामिल जो है इंतहाई मतलूब इश्तिहारी मुल्जिम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला वल शेख मोहम्मद नदीम हुसैन को जो है वो गिरफ्तार किया है। मुल्जिम जो है वो साल 2011 से कानून नाफिज करने वाले अदारों को मतलूब था और मुसलसल मफरूर था। मुख्तलिफ मुकदमात में इसके रेड वारंट्स भी इशू किए गए थे। ताहम रेड बुक में भी बाद में इसको शामिल किया गया। मुल्जिम और इसके साथी जो है शहरियों को हज उम्रा के पैकेजेस के नाम पर लाखों रुपए धोखा देकर लाखों रुपए हथियाते रहे हैं। जाली वादों और फरेब दही के जरिए मुतअद्दिद मुतासरीन जो हैं उनसे भारी रकूमात भी इन्होंने वसूल की हैं। मुल्जिम खवातीन से हासिल करदा दस्तावेजात और मालूमात को कंपनियों और कारोबारी अदारों के क़याम के लिए इस्तेमाल भी करता रहा है। इब्तदाई शुहात के मुताबिक ये कंपनियां मुजरमाना सरगर्मियों में हासिल शुदा रकम की मुंतकली और छुपाने के लिए इस्तेमाल की जाती रही हैं। ताहम मुल्जिम को गिरफ्तार करके मजीद तहकीकात का जो है आगाज कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया चीफ रिपोर्टर जीशान मलिक, हमें आगाह कर रहे थे। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN।